A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. So, I just hope you all are fine and everybody is fine at home also. Secondly, I always expect from you that you all are studying properly, doing your work, attending the online classes regularly, making the notes, learning it, revising it, and the most important, watching the videos also on a regular basis. So children, the topic which we are going to discuss today is about self. Self. Self क्या है? It refers to the totality of an individual's thought, feeling with regard to himself or herself as an object. That is a self. So self क्या है? It refers to the totality of an, okay, object's feeling and thought about himself or herself. हम जो अपने बारे में फीलिंग रखते हैं, अपने बारे में जो हम थॉट रखते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ. ये वर्ड जितना सिंपल है, जितना इजी है देखने में, बोलने में, उतना ही इसको जानना बहुत ही मुश्किल है. The irony is that the person usually knows about other one in a very proper manner, but they don't know about themselves. That is the concept of self. पूरी दुनिया के बारे में तो जान जाते हैं, अपने ही बारे में नहीं जानते. ये प्रॉब्लम है. The person knows about the whole world but unable to knows about themselves. So I hope children you understand about the self. Self refers to the totality of an, let me write it over here also. Self क्या है? Self refers to the totality of an, self refers to the totality of an individual's. I hope it is visible to you all. Shall I write it a little more big? Okay, let me write it again. Self refers to the totality of an individual's thoughts and feelings with regard to himself or herself as an object. So this is the meaning of self, children, which you can see on the board, and I hope it is clearly visible to you all. So self क्या है? Self refers to the totality of an individual thought and feeling with regard to himself or herself as an object. Please note it down so that we will start our discussion further.
So I just hope you have taken the screenshot or noted down. Now, सेल्फ के बारे में और क्या चीजें हमें जाननी है? What are the other things which we have to know? That is the self are of two kinds. We divide the self into two parts. This is the self which is divided into two parts. One is personal self. Second is social self. Personal self and social self. दो तरीके के सेल्फ होते हैं. पर्सनल सेल्फ को हम लोग बायोलॉजिकल सेल्फ, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल सेल्फ, इसे बायोलॉजिकल सेल्फ भी कहा जाता है. एंड सोशल सेल्फ इज ऑल्सो नोन एज फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ. इसे आप फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ और ये बायोलॉजिकल सेल्फ. So there were two kind of self, biological self and social self. सेल्फ भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ. पर्सनल सेल्फ एक आपका खुद का सेल्फ. सोशल सेल्फ विच रिलेट योर सेल्फ विद द सोसाइटी. सो सोशल सेल्फ वो सेल्फ है विच रिलेट, विच मेक यू द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. पर्सनल सेल्फ में क्या चीजें आएंगी? व्हाट कम अंडर द पर्सनल सेल्फ? When we talk about the personal self, so what come under this one? It will include personal freedom. आपकी पर्सनल फ्रीडम जो है उसके बारे में बात होती है. डिस्कस अबाउट पर्सनल फ्रीडम. आपकी पर्सनल अचीवमेंट, आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है वो आपका पर्सनल सेल्फ, आपकी फ्रीडम. पर्सनल गोल, आपने जो गोल बनाया है. So your personal freedom, your personal achievement, your personal goal, it all focus on your personal self. Social self में क्या चीजें आएंगी? What come under the social self? Social self में क्या आएगा? Social self में आएगा आपका affiliation. The feeling of affiliation come under the social self. Then affiliation के बाद cooperation, that also related. जब हम ग्रुप में होते हैं, सोशल होते हैं, तो affiliation की फीलिंग होती है, belongingness की फीलिंग होती है. cooperation होता है, then competition भी होता है. cooperation, competition, ये सब आपका किसका पार्ट है? सोशल सेल्फ का. ठीक है. एफिलिएशन, एफिलिएशन मतलब बिलोंगिंगनेस. देन कॉपरेशन, कंपटीशन, ये सब आपका सोशल सेल्फ का पार्ट है. सो सेल्फ के बारे में हमने जाना. सेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये जाना, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ. नाउ सेल्फ के कुछ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी हैं. So let us understand about that one. If you want to note it down, you can note it down or have a screenshot also. So yes children, self also have some aspects. इसके aspects हैं. कौन से aspect हैं? There were two aspects. One is cognitive and another one is behavior. One is cognitive, one is behavioral. Cognitive aspect भी होता है सेल्फ का, यानी cognitive word attached है which means something related to thinking. इसका behavioral aspect भी होता है, something which is related to action, behavior, which is seen, which cannot be seen. Overt भी होता है behavior, covert भी होता है. You already have read these basics
in your class 11 that the behavior are divided into two part, overt and covert. Basically behavior को आप कैसे define करते हैं? Behavior is a response toward the stimulus. कोई भी stimulus से toward अगर आप response करें, if something is coming toward your eyes, you blink your eyes or you remove it with your hand, that is also a behavior because you respond toward that particular stimulus, and the stimulus is anything which is coming toward your eyes. So you have move your hand just to remove it. Okay, fine. So behavior can be overt or it can be covert. Overt means which is seen. जैसे अब ये हटाना, this removing is overt behavior. मुझे देखा. Sometime the behavior is covert also. Covert means which is inside, which is not seen. Over यानी ऊपर, covert means inside, जो दिख नहीं रहा. ठीक है. तो सेल्फ के दो पार्ट होते हैं, कॉग्निटिव और बिहेवियर. कॉग्निटिव में क्या क्या आता है? कॉग्निटिव में आता है आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी. बिहेवियर में क्या आएगा? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ control. So these 2 points come under the behavioral and these 2 points come under the cognitive. Please keep it in your mind. ये अपने mind में पूरी तरह से बैठा लीजिए. We will discuss these all 4 points in detail also. But first of all, you should know what are the cognitive aspects of self and what are the behavioral. Cognitive, self-esteem, self-efficacy, behavioral, self-regulation and self-control. So आगे डिस्कस करते हैं वन बाई वन. सो वन बाई वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ एस्टीम को. सेल्फ एस्टीम इट मीन्स द वैल्यू जजमेंट अबाउट वन सेल्फ. सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? वैल्यू जजमेंट अबाउट वन सेल्फ. मीन्स हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ, हाउ मच यू रेस्पेक्ट योर सेल्फ. That is your self-esteem. Sometimes it has been seen that some of the person is having a very high self-esteem about themselves. So that is a fine. But having a low self-esteem is not at all fine. Are you understanding? Having a low self-esteem, सेल्फ एस्टीम अगर लो होता है तो इट इज नॉट एट ऑल गुड. क्योंकि बिकॉज इट लोअर्स योर कॉन्फिडेंस. इफ यू डोंट रेस्पेक्ट योर सेल्फ, इफ यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ, हाउ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर वन दैट दे विल वैल्यू यू एंड दे विल रेस्पेक्ट यू. सो सेल्फ एस्टीम को कभी भी लो मत रखो. एवरेज रख सकते हो, ऑप्टिमल रख सकते हो, हाई भी रख सकते हो. इट इंक्रीजेज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. इफ एनी पर्सन इज फाउंड टू बी हैविंग अ सेल्फ एस्टीम वेरी लो, सो इट इज प्रूवन दैट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वेरी लो. Such person have other cognitive problem also, like unable to take decisions, unable to make judgments. ये सारी चीजें होती हैं उनके साथ जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है. Now the self esteem have been shown in 4 areas. Researches हुए थे and the research have founded that कि self esteem 4 areas में दिखते हैं. I am writing over here. First, social area. Second, academic. Third, physical appearance. जितना देखने में ही बहुत इजी लग रहा है ना बेटा, इसका बहुत मायने हैं इन योर लाइफ. सेल्फ एस्टीम, ओके. किसी किसी की सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, दे सफर अ लॉट. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरिया ऑल्सो. फिजिकल अपीयरेंस. फोर्थ इज स्पोर्ट्स.
these are the 4 areas where the self esteem have been seen. जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस सबसे पहले मैं ले रही हूँ. आई एम टेकिंग द फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस मीन्स हाउ यू लुक फ्रॉम आउटसाइड. Are your body is in shape or not? Are your face is how? What is physical appearance? Whether you are very fair, whether you are very not fair color, hairs कैसे means your looks. इसको लेके भी सेल्फ एस्टीम होती है. Somebody have a self esteem very high. I look like a Salman Khan. Okay, I look like a Katrina Kaif. तो ये सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है. नाउ सी इसमें भी एक एस्पेक्ट आता है. सेल्फ के भी 2 पार्ट होते हैं विच रॉजर हैज सेड. कार्ल रॉजर ने बताया सेल्फ इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट, आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ. जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि किसी किसी की सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है, सोचते हैं कि हम सलमान खान सोचते हैं, हो सकता है मे बी वो दे लुक लाइक दैट वन. ओके, सो दैट इज वाई दे इट गिव देम अ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज वाई देयर सेल्फ एस्टीम इज हाई. बट ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट अज्यूम करते हैं. ठीक है, अज्यूम करते हैं हम ऐसे दिख रहे हैं पर वो होते नहीं है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है. ओके, जैसे कि रॉजर ने बताया देयर वर 2 काइंड ऑफ सेल्फ, रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ. फॉर अ बैलेंस पर्सनैलिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ द सेल्फ शुड बी इन अ कॉन्ग्रुएंट, मीन्स लॉजिकली इन लाइन. दोनों ही सेल का एक लॉजिकल लाइन में होना बहुत ज़रूरी है, आइडियल सेल का और रियल सेल का. रियल सेल वो जो आप हो और आइडियल सेल वो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो. तो अगर आप जो हो और आप जिसकी तरह बनना चाहते हो, अगर आप में उस जिसकी तरह आपको बनना है, जो भी आपका आइडियल सेल्फ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स अगर आप में नहीं है तो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा उसकी तरह बनना. अगर उसके ट्रेड्स आप में नहीं हैं तो आप नहीं बन सकते, बट हैं तो आप बन सकते हो. तो दैट इज अ रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ. तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, और जब कॉन्ग्रुएंसी रहती है तो सेल्फ एस्टीम भी हाई होता है. ठीक है, चलो. सो सेल्फ एस्टीम इज सीन इन फिजिकल अपीयरेंस. Similarly, it is also seen in academic area. Academic में भी दिखता है. Somebody have a very high self esteem academic कि अरे मैं तो 100 से मार्क्स नीचे मेरे आते ही नहीं हैं. I am unable to score the marks, या मेरे मार्क्स 100 से नीचे आते ही नहीं हैं. ओके, तो या फिर कोई पर्सन है, कोई चाइल्ड है जो 98, 99, 100 स्कोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी सेल्फ एस्टीम एकेडमिक में हाई होगी कि. और ये एक बात है, ये एक इंसिडेंस है. बट यूजुअली क्या होता है कि समटाइम एकेडमिक में भी सेल्फ एस्टीम दिखते हैं, तो इसका इफेक्ट पर्सन पे बहुत पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ एनी पर्सन इज हैविंग अ टेंडेंसी, उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम, अपने आप को वैल्यू करना, जजमेंट करना एकेडमिक में बहुत अच्छा है, तो वो ग्रो भी करते हैं कि नहीं मेरी सेल्फ एस्टीम, मैं एकेडमिक में अच्छा हूँ. ये वो अपने आप को जानते हैं कि मैं अच्छा हूँ. तो अगर किसी की सेल्फ एस्टीम हाई होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर लो होती है तो उनको ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता. तो ये जो स्टेटमेंट हैं ये शो करते हैं कि आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो इस एरिया में. क्यों नहीं ला सकते हो? Why it is so? You also have the brain, you also have the cognitive capacity, you also have the memory and intellectual capacity. Why you are not able to do so? This require a hard work. See, nobody children is like the same. कोई एक जैसा नहीं होता. किसी किसी की IQ by birth हाई होती है, किसी किसी की लो होती है, एवरेज होती है. तो that we can't change. But ये नहीं कह सकते कि we can't change our goal, we can't change our life. वो नहीं चेंज कर सकते, बट अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हो थ्रू योर हार्ड वर्क. मान लीजिए बाय बर्थ, सपोज बाय बर्थ आपकी IQ लो है, बट विद योर हार्ड वर्क, विद योर डिटर्मिनेशन, यू कैन मेक इट हाई. वी हैव लर्न दैट environment also has an effect on the person.
ये हमने पढ़ा है. It is not only the nature role has in everything. Nurture is also playing a great role. And nurture means don't depend on other. You also have to nurture yourself. Then you will be able to grow. And the most important point to grow in your life is to remove all the negative thinking from your mind. जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा. Now up to you have to think whether you have to think in a negative manner, go in a negative direction, or you have to move with a positive. Never lose hope and never stop trying until death. I think you have read that phrase और ये philosophical नहीं है. हम हारते तब नहीं हैं जब हम कोई चीज़ को लूज मीन्स वहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं. The other people doesn't make you to lose. You only make yourself to lose. आप जब तक दिमाग में ये नहीं बैठाओगे कि मुझसे नहीं होगा या ये नहीं बैठाओगे कि मुझसे होगा, तभी वो चीज़ें होंगी. अगर आपने ये कहीं ना कहीं माइंड में सेट कर लिया कि नहीं ये तो मुझसे आपने छोड़ा, तभी वो आप वहाँ पे जब तक आप लड़ते रहोगे, जब तक आप नहीं छोड़ोगे, आप नहीं हारे. ठीक है. चलो, तो बेसिकली द सेल्फ एस्टीम शोज इन सोशल एरिया, सॉरी एकेडमिक एरिया, फिजिकल. सिमिलरली सोशल एरियाज में भी सेल्फ एस्टीम दिखते हैं. सोशल एरिया मीन्स हाउ व्हाट इज़ योर पीयर ग्रुप, व्हाट इज़ योर फ्रेंड सर्कल, कितने लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, आपका सोशल एक्सपेक्ट कैसा है, आप अपने आप को कितना वैल्यू और रिस्पेक्ट देते हो सोशल एरियाज में. ठीक है. किसी का बहुत सेल्फ एस्टीम हाई रहता है, अरे मैं तो सबको फ्रेंड्स बना लूँगा, आई एम वेरी जॉली नेचर, आई कैन डू. ओके, ये होता है सेल्फ एस्टीम हाई है इन सोशल एरिया. सिमिलरली सेल्फ एस्टीम स्पोर्ट्स में दिखता है. स्पोर्ट्स यानी फिजिकल एक्टिविटी में भी दिखता है. समबडी हैव अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम इन फिजिकल एक्टिविटी. उनको लगता है मैं नहीं खेल सकता, मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा. किसी का बहुत सेल्फ एस्टीम हाई होता है. So researchers have found out these 4 areas where the self-esteem have been shown. The next is the self-efficacy. Here the word is efficacy. Efficacy is derived from the word efficiency. Efficacy means efficiency. How much you feel yourself efficient. That is a self-effort. It talks about the, please write it down, it talks about the respect, value. आप कितना अपने आप को वैल्यू करते हो, कितना रेस्पेक्ट देते हो. इट टॉक्स अबाउट आप कितना अपने आप को एफिशिएंट मानते हो, कितना कैपेबल मानते हो, हाउ मच यू फील दैट यू आर हैविंग अ पोटेंशियल टू डू एनीथिंग. समबडी हैव अ लो सेल्फ एफिकेसी. उनको लगता है कि मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता. दे सेट देयर माइंड, दे हैव अ सेल्फ एफिकेसी लो. See children, what I am teaching you today, I am teaching you all about the self. बाहर नहीं जाना है, बस अपने अंदर आप झांकना है. आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है, आपका सेल्फ एफिकेसी क्या है. सेल्फ की बात हो रही है. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ एफिकेसी में, इसमें भी कुछ एरियाज़ होते हैं जिसमें कि पर्सन की सेल्फ एफिकेसी दिखती है. इस एरियाज़ में भी आप देख सकते हो. ठीक है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे बिहेवियरल एस्पेक्ट. सेल्फ का कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट भी होता है. ये सारे तो माइंड में थे. हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम सेइंग एट दैट टाइम इज यू कैन मेजर देम ऑल्सो. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट एंड one you all had done, you are all going to do the practical also, self concept where you get to know about your self esteem या जिस पे भी आप कर रहे हो, from whom the subject you all are doing, so you will be able to know about your subject self esteem, self efficacy. Okay, there are different areas, आप जान सकते हो.
तो इट कैन बी असेस्ड ऑल्सो, इट कैन बी मेजर्ड ऑल्सो। आप मेजर कर सकते हैं कि आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है, कितनी है, किस रेंज में, हाई है, लो है, वेरी लो है, वेरी हाई है, और इज इट एवरेज। ओके, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं सेल्फ के? सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ रेगुलेशन नाम से पता चल रहा है ना, तो रेगुलेशन से रिलेटेड है, बिहेवियर को अपने सेल्फ को रेगुलेट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियरल एस्पेक्ट है सेल्फ का। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं। रेगुलेशन से क्या समझते हैं आप लोग? रेगुलेशन मीन्स मॉनिटर करना अपने आप को, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, मैनेज करना, एक अपना टाइम टेबल बनाना कि मुझे क्या चीज़ करनी है लाइफ में, क्या फॉलो करना है। फाइन, okay, so self regulation, I hope you understand about the self regulation. Now it's about the self control. Please note it down these things which are written on the board. This will definitely help you. It is something like a chart. So self control, सेल्फ कंट्रोल क्या है? सेल्फ कंट्रोल की एक मीनिंग होती है कि डिले इन दी ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड, डिले और डिफर इन दी ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, हाउ मच यू आर एबल टू कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, how much you are able to control on your needs, on your basic needs, on your biological need, that shows the self control. किसी किसी का सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है सेल्फ का। जैसे यू हैव माइट ऑब्जर्व, व्रत जो लोग रहते हैं, लेडीज व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, तो दैट इज द सेल्फ कंट्रोल, नीड्स पे कंट्रोल करना, ये भी आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले यू हैव रेड इन द एंशिएंट टाइम, जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे? उन्होंने वो तप करते थे। तप क्या है? सेल्फ कंट्रोल है। तप क्या है? इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल, एंड देन दे विल बी एबल टू अचीव समथिंग। ऐसा नहीं हो कि उनको वरदान दे दिया जाता था, भगवान बिना कुछ किए, हाँ हम तुमसे प्रसन्न हैं, आज मैं तुमको ये वरदान दे रहा हूँ। वरदान क्या है? इज समथिंग अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग, एंड दैट दे आर गेटिंग बाय थ्रू अ वेरी हार्ड वर्क. So how you can expect from in today's world that you will get each and everything without doing anything? बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, बैठने से तो कुछ नहीं मिलेगा। रेस में जीतना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहने से तो रेस जीतोगे नहीं। इफ यू स्टैंड एट द रेस पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट, you will not be able to win the race. For winning the race, you have to run and hardly run. Then you will be able to achieve your goal. So children, self-control बहुत important है. There are some of the techniques of self-control also. Self-control के लिए कुछ techniques बताए गए हैं. Cognitive हम रब कर रहे हैं क्योंकि हम लोग behavior discuss कर रहे हैं. What are the techniques of self-control? First, observation of one's own behavior. Observation of one's own behavior. ये first technique है. Second है self-instruction. Third है self-reinforcement. So ये 3 टेक्निक्स हैं, किसके हैं? सेल्फ कंट्रोल की.
सेल्फ कंट्रोल में हम अपने ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, खुद को ही इंस्ट्रक्शन देते नहीं मुझे ये नहीं करना, और फिर जब मैं उस चीज़ों को कर लेता हूँ, अचीव कर लेता हूँ, तो हम अपने आप को ही रिन्फोर्समेंट भी देते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे कोई और रिवॉर्ड या पनिशमेंट जो भी रिन्फोर्समेंट दे, मैं खुद को ही रिन्फोर्समेंट देती हूँ। जैसे एग्ज़ाम टाइम में हम लोग अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं पूरे एग्ज़ाम टाइम में मैं मोबाइल नहीं टच करूँगा, आई विल नॉट टच द मोबाइल। फिर आप अपने आप को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देते जाते हो, और फिर जैसे एग्ज़ाम ओवर होते हैं यू विल टेक द मोबाइल। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सेल्फ कंट्रोल. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ओवरऑल अबाउट दिस सेल्फ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Okay, still if you find any doubt you will definitely ask children. Thank you so much for carefully listening and observing to me.